Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. English grade 8th. Today we are going to start unit number 2nd and this is the first lecture. Before this we have completed unit number 1 and 5th. And unit number 2nd is at page number 14 we will start our reading. Before the reading there is some introduction to the unit. Unit name is The Strange Voyage of Sinbad. Strange, astonishing voyage, sea journey of Sinbad. Sinbad is a fictional character of the stories. Okay, सिंबाद का अजीबोगरीब समंदरी सफ़र. Okay, this introduction to the unit. Sinbad is a fictional sailor. Fictional means which is not based on reality, which is based on imagination. Of Arabian Nights. Arabian Nights is a series of fictional, imaginary stories, and how he visited the different areas and he faced the different did the different adventures and how he encountering or faced the supernatural phenomena. Here you can see a list of the fictional stories, and these are all stories are the Arabian Nights. Okay, these are the parts of Arabian Nights. For the unit, here is a picture. Sinbad tied with the leg of a bird. There is a huge bird rock and there is an egg, and the area setting of the story is there is an Ireland, an area which is surrounded by the water, and the bird is carrying the Sinbad to that Ireland. अब किस तरीके से सिंबाद का सफ़र स्टार्ट होता है और किस तरीके से ये मुख्तलिफ जगहों पे जाता है. यहाँ पे ये आयरलैंड पे जाता है, वहाँ पे इसको डायमंड्स और मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती हैं, बट देर आर आल्सो ह्यूज स्नैक्स एंड मैनी अदर थिंग्स, जिससे उसको अपनी लाइफ को काफ़ी खतरा होता है कि किसी भी टाइम जो है वो डेथ के मुँह में जो है वो जा सकता है. और इतने हीरे जवाहरात और इतनी मतलब कि वो वर्ल्डली थिंग्स होते हुए भी वो इनको पिकअप नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसको अपनी मौत का भी डर होता है. लेकिन फाइनली वो अपना जो है वो वापस अपने वतन वापस आ जाता है. तो व्हाट इज़ द थीम? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. थ्रू स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वी कैन फाइंड अवर गोल, एंड वर्ल्डली थिंग्स आर ऑफ नो यूज़ इफ़ अवर लाइफ इज़ इन डेंजर. दिस इज़ द थीम ऑफ द यूनिट. Means कि if we have strong determination, finally we can get our destination, and worldly things are of no use if our life is in danger. Okay dear students, let's start our reading. I had inherited considerable wealth from my parents, but being young and foolish I wasted it carelessly. I, the narrator himself is telling the story. I is in first person. I had inherited the considerable. Inherited, received as an hire at the death of the previous holder. विरसे में मिलना. Considerable, a huge amount. Wealth from my parents, but being young and foolish I wasted it carelessly. I had inherited considerable wealth from my parents. मुझे अपने वालिदैन से माकूल दौलत विरासत में मिली. But being young and foolish, लेकिन जवान और बेवकूफ़ होने की वजह से I wasted it carelessly. मैंने इसको बेहतियाती से ज़ाया किया. Finding that which is speedily takes to themselves wings if managed badly. Finding that, इतना पता चलने पर, that which is speedily take to themselves wings, कि दौलत को बहुत जल्दी पर लग जाते हैं. इफ़ मैनेज बैडली, अगर उसको बुरे तरीके से इस्तेमाल, कि दौलत जल्दी ख़त्म हो जाती है अगर उसे बुरे तरीके से इस्तेमाल किया जाए. एक्स्ट्रा वैगनेंट यानी कि फ़जूल खर्ची अगर की जाए. इस्लाम भी इस चीज़ पे जो है वो सख्ती से ममानियत करता है एक्स्ट्रा वैगनेंट होने पे जो है कि आप लोगों ने फ़जूल खर्ची नहीं करनी. आई बिगेन टू थिंक, मैंने सोचना शुरू किया, ऑफ हाउ आई कुड मेक द बेस्ट ऑफ व्हाट स्टिल रिमेन टू मी, कि जो बाकी मेरे पास रह गया उसका मैं बेहतरीन इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ. आई सोल्ड ऑल माई हाउस होल्ड गुड्स बाई पब्लिक ऑक्शन, और मैंने अपनी तमाम बाकी की घर की चीज़ें जो हैं एक अवामी नीलाम घर में जो है वो बेची. ऑक्शन बोलते हैं पब्लिक सेल ऑफ समथिंग टू द हाईएस्ट बिडर. ठीक है, नीलाम घर को बोलते हैं. एंड जॉइन द कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स हु ट्रेडेड बाई सी, और उन सौदागरों की कंपनी में जो है वो शमूलियत इख्तियार कर ली. हु ट्रेडेड बाई सी, जो कि समंदर के ज़रिए तिजारत करते थे. आई ऑब्टेन्ड गुड्स, मैंने वो तमाम चीज़ें हासिल की. एज़ वर सूटेबल फॉर द प्लेसेस, जो उन तमाम जगहों के लिए मुनासिब थी. आई इंटेंडेड टू विज़िट, जिनका मैंने सफ़र करने का इरादा रखा हुआ था. एंड एम्बार्क्ड इन अ
गुड शिप, और एक अच्छे बैरी जहाज़ में जो है मैं सवार हो गया विद अदर मर्चेंट्स, दूसरे सौदागरों के साथ। वी वेंट फ्राम आइलैंड टू आइलैंड, हम एक जजीरे से दूसरे जजीरे पे गए। ऑफन मेकिंग एक्सीलेंट बार्गेन्स, और पास वक्त हमने बहुत ज़बरदस्त लेन देन की, तजारत की। अनटिल वन डे वी लैंडेड एट अ स्पॉट विच, और आखिरकार हम एक ऐसी जगह उतरे दो कवर्ड विथ फ्रूट ट्रीज एंड द स्प्रिंग ऑफ एक्सीलेंट वाटर, जो कि फ्रूट फलों के दरख्तों से और एक शानदार चश्मों से जो है वो ढकी हुई थी। अपीयर टू पोजेस नीदर हाउसेज नॉर पीपल, लेकिन वहाँ ना तो घर थे और ना लोग थे। वाइल माई कंपेनियंस वॉन्डेड हेयर एंड देयर, जबकि मेरे साथी इधर उधर घूम रहे थे, गैदरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट, और फल और फूल इकट्ठे कर रहे थे। आई सेट डाउन इन अ शेडी प्लेस, में एक सायादार जगह बैठा। एंड हैविंग हर्टली इंजॉयड द प्रोविजन्स गुड्स, उन तमाम चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जो मेरे साथ लेके आया था। आई हैड ब्रॉड विद मी, आई फेल अस्लीप, और फिर मैं सो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 14 की रीडिंग है। इस पेज से रिलेटेड कुछ इंग्लिश एंड उर्दू मीनिंग्स हैं। आप इनको अच्छे तरीके से ड्यूरिंग रीडिंग भी मैंने इनको प्रोनाउंस किया है। आप एक दफ़ा इनको अच्छे तरीके से पढ़ें, और इनको आप लोगों ने अपनी नीट कॉपी पे जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट यूनिट नंबर 2, और उस नेक्स्ट पेज पे उस यूनिट का थीम लिखें, और थीम लिखने के बाद आपने ये वाले वर्ड्स मीनिंग जो है इंग्लिश एंड उर्दू मीनिंग्स जो है आपने अपनी नीट कॉपी पे रिटन होमवर्क